Hello students and welcome to Prep IAS. My name is Shubhangi Sharma and as a part of this particular series, we are conducting a crash course for history and culture. Now students, in this particular lecture, we are going to take up another topic from ancient India, that is the period of Mahajanpads. So let's begin. Now here students, when we talk about the rise of Mahajanpads, इसके लिए हम एक टाइमलाइन ट्रेस करते हैं. बेसिकली हमने अपने लास्ट के लेक्चर्स के अंदर क्या क्या पढ़ा है, ऋग्वेदिक पीरियड पढ़ा है और लेटर वैदिक पीरियड पढ़ा है. लेटर वैदिक पीरियड के बाद हम देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड जो है दैट इज बिटवीन 1000 to 600 BC लगभग, दैट इज व्हाई वी पुट द सी डॉट. Apart from that, when we talk about the Rigvedic period, it is between 1500 to 1000 BC. Now students, when we talk about the Mahajanpad period, it corresponds to the beginning of 600 BC and we will see that this particular period will last till almost 300 BC. लगभग टाइम पीरियड हम लेके चल रहे हैं. हमारे पास एंशिएंट इंडिया के अंदर बहुत एब्सोल्यूट डेट्स नहीं होती. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रांजिशन फ्रॉम ऋग्वेदिक पीरियड टू द महाजनपद पीरियड, वन मेजर चेंज दैट यू आर गोइंग टू सी इज द emergence of cities. Now, when we talk about the Rigvedic period and the later Vedic period, these are largely pastoral societies. And when we talk about these two societies, they are not agriculture dependent as such. It is only at the end of the later Vedic period, students, that you will start seeing agriculture happening, large scale agriculture happening for that matter, due to which there will be rise of new cities that will lead to formation of empires which are known as Mahajanpads. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि ऋग्वेदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड से होते हुए महाजनपद तक जाते जाते हमारे पास फर्स्ट अर्बनाइजेशन यानी आईवीसी के बाद इंडिया में दूसरी बार अर्बनाइजेशन देखने को मिल रही है. यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे जब हम इस सेकेंड टाइम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं जिसमें सिटीज एमर्ज हुई हैं, इस कारण इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को बोला जाता है सेकेंड अर्बनाइजेशन. तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज हो गई. पहली टर्मिनोलॉजी क्या है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब हुई थी? फर्स्ट अर्बनाइजेशन हुई थी ड्यूरिंग योर इंडस वैली सिविलाइजेशन. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकंड अर्बनाइजेशन, इट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड फ्रॉम 600 AD onwards. Here students, let's start with the features of Mahajanpad period that makes it stand out from the earlier cultures, because of which we are calling it the second urbanization. Sorry. So here students, when we start with the Mahajanpad period, the first major feature is going to be the emergence of cities. बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो रहा है, हम देखते हैं कि ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर हमारे पास है पीजीडब्ल्यू, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हमें पीजीडब्ल्यू पॉटरी के साथ में और क्या मिल रहे हैं, आयरन टूल्स मिल रहे हैं. लेकिन मैंने आपको लेटर वैदिक पीरियड के लेक्चर में बताया था कि ये जो आयरन टूल्स हमारे को मिल रहे हैं, दीज आर नॉट एग्रीकल्चरल टूल्स, रादर दीज आर लार्जली दोज टूल्स दैट आर यूज्ड फॉर द क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट्स. Now, the major change that can be witnessed during the Mahajanpad period is the use of iron plow in agriculture. It is the use of iron plow in agriculture. तो भाई इससे क्या मेजर चेंज आ गया? आयरन प्लाव यूज करने की वजह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हम सख्त से सख्त जमीन के ऊपर अब एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बेटर यील्ड आ रही है और ये बेटर यील्ड हमारे को एग्रीकल्चरल सरप्लस इकट्ठा करने में हेल्प कर रही है. So here students, you will see when we talk about the invention of iron plow and its use in the Mahajanpad period, this will lead to agricultural surplus. This agricultural surplus, students, what is it going to help us with? This agricultural surplus in turn will help us in creating a taxation system. It is going to help us in create a taxation system. Besides, if we have a lot of agricultural surplus, the people will be free altogether during the entire duration of an year. So they will look for other kind of professions, and as a result, you will find that there is going to be multiplicity of professions. ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोफेशंस और टैक्सेशन मिलके क्या करेंगे, हमें स्टैंडिंग आर्मी खड़ी करने में हेल्प करेंगे
और ये स्टैंडिंग आर्मी इन टर्न हमारे लिए एम्पायर्स की फॉर्मेशन में हमें हेल्प करने वाली है। तो बेसिकली जिस्ट में मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ एक आयरन प्लाव के इन्वेंशन से हमें कितना ज्यादा फायदा हो गया। यहाँ पर एग्रीकल्चरल सरप्लस है, सरप्लस की वजह से टैक्स लग रहा है, टैक्स के साथ साथ बहुत लोग अब फ्री हैं, उनको एग्रीकल्चर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो ट्रेडिंग के अंदर, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन के अंदर जा रहे हैं। मोर ओवर जब हमारे पास टैक्सेशन होती है, एक्स्ट्रा पैसा होता है, तो उससे हम एक लार्ज एडमिनिस्ट्रेशन और एक स्टैंडिंग आर्मी खड़ी कर सकते हैं, और इसकी वजह से धीरे धीरे एक्सपेंशन होता है और एम्पायर्स का राइज होता है। So this is the process, students, that is being followed in the Mahajanpad period, which will lead to emergence of cities, and in turn it is also going to help us in the emergence of empires. तो पहला फीचर हमने ठीक से एक्सप्लेन किया कि भाई सिटीज क्यों एमर्ज हो रही हैं। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि ट्रेड का एक्सपेंशन हो रहा है। ट्रेड की भी स्टूडेंट्स मैंने आपसे बात करी, ट्रेड कब एक्सपैंड करेगी? ट्रेड तब एक्सपैंड करेगी जब हम अपनी डे टू डे की सबसिस्टेंस से ऊपर उठ जाएंगे। हम अपनी डे टू डे की सबसिस्टेंस, जहाँ पे हमारे पास एक ही टेंशन है कि रात को खाना कैसे आएगा, तो यहाँ पे हम इस टेंशन से तो हट चुके हैं क्योंकि हमारे पास में एग्रीकल्चरल सरप्लस है। एंड एज अ रिजल्ट, लेट्स से इफ देयर आर 4 members in the family and 2 are involved in agriculture, 2 are free, and these 2 people what are they going to do? खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो वो क्या करेंगे भाई? कुछ और काम ढूंढेंगे। एंड एज अ रिजल्ट वी फाइंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोफेशन विच इंक्लूड्स क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज दैट आर गोइंग टू हैपन. Moreover, students, one of the most important features of the Mahajanpad period is that at this point of time we had started using metallic money. पहली बार हम मेटालिक मनी यूज होते हुए देख रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो कॉइन्स हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत ही बेसिक कॉइन्स हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक नहीं है। इन अर्ली कॉइन्स को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं पंच मार्क्ड कॉइन्स। इन्हें हम कहते हैं पंच मार्क्ड कॉइन्स। ये जो पंच मार्क कॉइन्स है स्टूडेंट्स, इनको पंच मार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पे किसी तरह के सिंबल्स पंच किए जाते हैं। Now, when we talk about the early metallic money, most of these coins, students, were made out of silver and copper. It will be important to note that the early currency does not have any gold coins. The gold coins are something that will be witnessed for the first time in the post-Mauryan period. तो यहाँ पे हमारे पास पंचमार्क कॉइन्स हैं सिल्वर और कॉपर के। और मनी की जरूरत स्टूडेंट्स कब होती है? मनी की जरूरत तब होती है जब कोई पर्टिकुलर ट्रेड फ्लरिश कर रही होती है, सिटीज फ्लरिश कर रही होती है, और एम्पायर्स फ्लरिश कर रहे होते हैं। तो ये जो हर फीचर है ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम ट्रेड की एक्सपेंशन की बात करें तो इसी से एसोसिएटेड एक और फीचर है, द एमर्जेंस ऑफ राइटिंग. It will be important to note, students, that when we talk about the invention of writing, the earliest writings were not to put down your personal thoughts or philosophy. Rather, students, you will see that writing as an invention had emerged because people used it for trading purposes. इतना सामान गया, इतना सामान आया, इतना टैक्स देना है, इतनी इनकम आने वाली है। तो इन सब चीजों के लिए हम देखते हैं अर्लीस्ट राइटिंग्स इमर्ज हो रही है, ना कि कोई रिलीजियस फिलॉसफी लिखने के लिए। ये पर्टिकुलर पॉइंट अगेन हमें क्या बताता है कि ट्रेड का एक्सपेंशन चल रहा है, मेटालिक मनी हमें देखने को मिल रहा है, यानी मनी सर्कुलेशन चल रही है, और इस वजह से इसकी लिखा पढ़ी करने के लिए हम देखते हैं महाजनपद पीरियड में राइटिंग की इमर्जेंस होती है। इन सारे फीचर्स की वजह से हम कहते हैं कि महाजनपद पीरियड के अंदर सेकेंड अर्बनाइजेशन आ गई. इट इज कंसिडर्ड टू बी द सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया अराउंड 600 BC in the area known as the Indo-Gangetic Plains. So simply if I ask you in one line that where did the second urbanization happen, students, you will tell me that ma'am, it happened in the Indo-Gangetic Plains around 600 BC, which led to the emergence of cities in India after the Indus Valley civilization. ये तो हमने स्टूडेंट्स फीचर्स देख लिए महाजनपद पीरियड के. इसी के साथ यहाँ का सिरेमिक कल्चर भी ट्रेस कर लेते हैं. सिरेमिक का मतलब क्या होता है? जिस तरह की पॉटरी हम यूज कर रहे हैं और डे टू डे के अंदर जो सिरेमिक्स यूज कर रहे हैं वो किस तरह के बनते थे. अब स्टूडेंट्स अगर महाजनपद पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक पॉटरी की बात करी जाए तो यहाँ पे हमारे पास में जो कैरेक्टरिस्टिक पॉटरी है उसे बोलते हैं NBPW, यानी कि नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर.
ये जो पर्टिकुलर पॉटरी है स्टूडेंट्स, इट विल बी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इट इज फाउंड along with lots of iron tools and implements. And unlike the later Vedic period, here the iron tools which are found are agricultural tools. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम आर्कियोलॉजिकल सीक्वेंस की बात करें तो ऋग्वेदिक पीरियड में हमें क्या मिलती है? पीजीडब्ल्यू। लेटर वैदिक पीरियड में हमें क्या मिलते हैं? पीजीडब्ल्यू प्लस आयरन टूल्स, बट दीज आयरन टूल्स आर नॉट एग्रीकल्चरल टूल्स. Whereas when we talk about the Mahajanpad period, students, you will see that we are finding NBPW, and with that we also find a lot of iron tools, and these iron tools also include agricultural tools, especially iron tipped plow, which helped us in creating a lot of agricultural surplus that ultimately led to the rise of early empires in India. Apart from NBPW, students, one other pottery that is found as a part of the Mahajanpad period is going to be BRW, which is also known as black and red ware. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इंसेप्शन देख लिया, हमने अर्ली राइज ऑफ महाजनपद पीरियड देख लिया, क्या कारण रहे जिसकी वजह से महाजनपद पीरियड के अंदर इतनी प्रोग्रेस हो रही है, इसका हमने डिस्कशन किया है. और यहाँ पर हम ये चीज बहुत ही अच्छे से पॉइंट आउट कर पा रहे हैं दैट व्हाई इट इज नोन एज द सेकंड अर्बनाइजेशन. So with this information, students, let's proceed further and have a look at the Mahajanpads which were rising around 600 BC. जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिटीज की इमर्जेंस हो रही है और सिटीज के अलावा आप देखेंगे अर्ली एम्पायर्स का राइज हमें 600 BC से देखने को मिलता है. यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो अर्ली महाजनपद्स हैं ये हमारे नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और डेक्कन तक फैले हुए थे. Let's have a look at this particular map, students. Majority of the concentration is something that is a part of your central and eastern India. वेस्ट में भी बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास, वेस्टर्न इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं है. कुछ महाजनपद हमारे पास में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे हैं और एक हमारे पास ये आइसोलेटेड महाजनपद है डेक्कन में जिसका नाम है अशमाक. तो यहाँ पे हमारे पास में ये महाजनपद हैं और मेजरली इनकी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है? मेजरली इनकी कॉन्सेंट्रेशन है सेंट्रल इंडिया में एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में. तो ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, इंडिया के मैप की अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम कहां पर थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम इंडस वैली के अंदर खड़े थे, इंडस वैली और उसकी ट्रिब्यूटरीज में. टेक्निकली अगर स्टेट्स की बात करी जाए तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात. ठीक है. उसके बाद में जब हम ऋग्वेदिक पीरियड की बात करते हैं तो अगेन हम सप्त सिंधु एरिया में खड़े हैं. सप्त सिंधु का मतलब क्या हुआ? हम पंजाब प्लस हरियाणा प्लस सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान इस एरिया के अंदर है. लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एक्सपेंशन हो रहा है. लेटर वैदिक पीरियड में इनके साथ साथ हम और कहां पे एक्सपैंड कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में. हमने दो ट्राइब्स के नाम पढ़े थे, कुरु और पांचाल, जो कि अपर और मिडिल गैंजेटिक दोआब में एक्सपैंड करते हैं. और इस एरिया की अगर हम बात करें तो स्टेट वाइज इट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू उत्तर प्रदेश. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जब हम महाजनपद पीरियड की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द महाजनपद पीरियड, इन दिस पर्टिकुलर पीरियड स्टूडेंट्स यू विल सी दैट वेयर आर वी एक्सपैंडिंग? वी आर एक्सपैंडिंग मोर टुवर्ड्स east and also towards Deccan, wherein if you talk about the states, it is corresponding to parts of Bihar specifically and some parts of Karnataka. ठीक है. डेक्कन की तरफ हम आ गए हैं, नॉट रियली कर्नाटका, सॉरी स्टूडेंट्स, दिस इज गोइंग टू बी महाराष्ट्र. ठीक है. तो यहां तक हम आ चुके हैं. इतना एक्सपेंशन अब हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर हो चुका है. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उसके अलावा बिहार की तरफ हम और ज्यादा फैल चुके हैं. महाराष्ट्र की तरफ हमारे पास एक आइसोलेटेड साइट है दैट इज अशमाक. अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो मेजर महाजनपद हैं, वन इज कंबोज एंड द सेकेंड वन इज गांधार. अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स इट विल बी इंपॉर्टेंट टू नोट कि टोटल कितने महाजनपद थे हमारे पास. इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि हमारे को जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जो हमारे को बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, वो हेल्प करती हैं आइडेंटिफाई करने में कि टोटल कितने महाजनपद थे.
यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारे पास एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। और ये जो अंगुत्तर निकाय है, दिस टॉक्स अबाउट 16 महाजनपद, 16 महाजनपद की ये बात करती है जो कि बुद्धा की लाइफ टाइम में रहे। यहाँ पर हो सकता है स्टूडेंट्स आपको एक कंफ्यूजन हो कि भाई बुद्धा की बात एकदम से कहाँ से आ गई। तो पहले आप इस पॉइंट को समझ लें कि 16 महाजनपद कहाँ कहाँ पर एमर्ज हो रहे हैं, और इसके आगे मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या प्रोसेस चल रहे हैं। एक बार के लिए आप इस टेबल को साइड में रखिए। लेट मी टेल यू व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड। Now, when we talk about the Mahajanpad period, which corresponds roughly to the time period between 600 to 300 BC, you will see that there are three processes which are happening simultaneously. Number one, we see that there is second urbanization that is happening in India, because of which we see that 16 Mahajanpads are coming into power. This is the first process that is happening. The second process, students, that you will find as a part of the Mahajanpad period is that at this point of time we see first foreign invasions happening in India. तो यहाँ पे हम देखते हैं इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से पहली बार फॉरेन इन्वेजन्स होंगे, जिसमें हमारे पास कौन सी फॉरेन पावर्स आ रही हैं? वी सी ईरानियंस एंड मैकेडोनियंस। वी सी ईरानियंस एंड मैकेडोनियंस। मैकेडोनियंस ग्रीक्स हैं स्टूडेंट्स। तो ईरानियंस और ग्रीक्स जो हैं वो हमारे देश में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से अटैक करेंगे। इसी के साथ साथ इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी है, ये जो ब्राह्मणिकल रिचुअल्स हैं, इनके अगेंस्ट सोसाइटी जो है मिलके लड़ने लगेगी। इसके तहत एक बात की तो हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर ली थी लेटर वैदिक पीरियड में, क्या बनने वाले हैं? उपनिषद्स। इसके अलावा उपनिषद्स के अलावा आप देखेंगे कि हम दो मेजर हेटेरोडॉक्स रिलीजन्स का उदय देखते हैं महाजनपद पीरियड में। और ये क्या है? ये है जैनिज्म और दूसरा है बुद्धिज्म। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमने क्या क्या देखा? 600 बीसी से 300 बीसी के बीच में पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं। पॉलिटिकल चेंजेस के तहत राइज ऑफ एम्पायर्स हो रहा है। इसी पॉलिटिकल चेंज के तहत हम देखते हैं फॉरेन इन्वेजन्स भी हो रहे हैं। इन फॉरेन इन्वेजन्स में इंडिया में कौन अटैक करेगा? ईरानियंस और मैकेडोनियंस। उसके अलावा अगर हम सोसाइटी और कल्चर की बात करें तो इंडिया के रिलीजियस और सोशल लैंडस्केप में जो एक और चेंज हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है? हम देख रहे हैं ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किया जा रहा है, और इसकी वजह से विद इन ब्राह्मणिकल कल्चर उपनिषद्स बन रहे हैं। और ब्राह्मणिकल कल्चर के बाहर हम देखते हैं कि दो मेजर हेटेरोडॉक्स रिलीजन्स इमर्ज हो रहे हैं, विच इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 3 वीडियोस बनाएंगे महाजनपद पीरियड के। पहले वाले के अंदर हम 16 महाजनपद का डिस्कशन कर रहे हैं। दूसरे वीडियो के अंदर हम ईरानियन और मैकेडोनियन इन्वेजन्स देखेंगे। और तीसरे वीडियो के अंदर हम जैनिज्म और बुद्धिज्म की फिलॉसफी पढ़ेंगे। अब इस डिस्कशन के बाद वापस अपनी स्लाइड पे आते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हम 16 महाजनपद की बात करें तो आपको ये जो 16 महाजनपद हैं इनके एक एक रूलर उसके बारे में रीड करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, महाजनपद में से वैसे कम ही क्वेश्चंस आते हैं और प्रीलिम्स में हमने आज तक में बहुत ही रेयर क्वेश्चंस देखे हैं इस टाइम पीरियड से। इस वजह से मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए एक पर्टिकुलर टेबल बना दी है। इस टेबल को आप यूज करें। इसके अंदर हमने 16 महाजनपद के नाम लिख रखे हैं, उनकी कैपिटल और उनकी मॉडर्न लोकेशन लिख रखी है। अगर हमें इतना भी याद रह जाता है दैट इज गुड इनफ। इसके अलावा आप मैक्सिमम चाहें तो इनके मेजर रूलर्स के नाम पढ़ लीजिए। पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इन सारे महाजनपद की अगर बात करी जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ही महाजनपद है एंड दैट इज मगध। तो हम मगध को स्पेसिफिकली डील करेंगे। बाकी के महाजनपद में हमारी प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? इनके नाम, इनकी कैपिटल और इनकी मॉडर्न लोकेशन जो है उसको याद रख लीजिए, बहुत रहेगा। उसके अलावा ये बात हम याद रख लेंगे कि इन 16 महाजनपद के नाम कहाँ से मिलते हैं हमें। पाली टेक्स्ट है हमारे पास, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। तो वहां से हम देखते हैं कि हमें 16 महाजनपद के नाम मिलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इस इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर टेबल को आप ठीक से यूज कर लें। हम आगे प्रोसीड करते हैं एंड वी आर गोइंग टू फर्स्ट टॉक अबाउट द सोसाइटी, इकोनॉमी एंड द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन द महाजनपद पीरियड।
महाजनपद पीरियड की स्टूडेंट्स अगर बात करी जाए, तो अगर हम पॉलिटिकल यूनिट्स की बात करें, ठीक है, अगर हम पॉलिटिकल यूनिट्स की बात करें तो हमें लार्जली दो टाइप के स्टेट्स मिलते हैं, दो टाइप के स्टेट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। ये जो दो टाइप के स्टेट स्ट्रक्चर हैं, इसमें एक जो आपके सामने स्क्रीन पे है, एक होते हैं गणसंघ और दूसरे आपके पास में होते हैं मोनार्किकल स्टेट्स। एक होते हैं गणसंघ और दूसरे होते हैं मोनार्किकल स्टेट्स। तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल हिस्ट्री के तहत देख रहे हैं कि किस तरह के स्टेट स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। कुछ यूनिट्स होती हैं जो कि गणसंघ होती हैं और कुछ एरियाज हैं जो मोनार्की के बेसिस पर चल रहे हैं। इसमें स्टूडेंट्स जो हम पहला डिस्कशन कर रहे हैं वो गणसंघ का कर रहे हैं। बेसिकली गणसंघ की अगर बात करी जाए तो गणसंघ के अंदर आप देखेंगे इनको या तो सेल्फ गवर्निंग रिपब्लिक्स बोला जाता था या फिर ओलिगार्की बोला जाता था। Oligarchy students can be considered as an opposite of monarchy, wherein in a monarchy, power is in the hands of one person, one king. But when you talk about oligarchy, here power is diffused within a group. Here power is diffused within a group, and that is why it is a separate political structure in comparison to a monarchy. तो बेसिकली गणसंघ की अगर बात करी जाए तो ये इंडिया का बड़ा ही यूनिक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, जहां पर आप इसे एक अर्ली डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम भी कह सकते हैं। इट इज एन अर्ली डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम। सो बेसिकली स्टूडेंट्स इनके अंदर क्या होता है, गणसंघ के अंदर ऐसा होता था कि हम देख रहे हैं पावर जो है वो एक आदमी के हाथ में नहीं होती थी बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल में डिफ्यूज्ड होती थी। इनफैक्ट ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, अगर इनका कोई चीफ भी है, अगर कोई टॉप पोजीशन पे भी बैठा है तो वो इलेक्टेड होगा और सिर्फ उसकी नहीं चलेगी, बाकी मेंबर्स की बात भी उसको सुननी पड़ेगी। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जब हम गण संघ की बात करते हैं, ये जो गण संघ है, these are reminiscence of Vedic tribal culture. These are reminiscing the Vedic tribal culture, because when we talk about the Vedic tribes, when we talk about the Jan, at this point of time you will see कि ये जो जन होते थे इनमें पावर क्या होती थी, कम्युनिटी ओनरशिप होती थी। कोई भी एक आदमी दूसरे के ऊपर ज्यादा पावरफुल नहीं होता था। इट वॉज मोर लाइक अ इगैलिटेरियन सोसाइटी। So when you talk about Gana Sangh, they can be called egalitarian societies, wherein if you talk about administration, we don't have a monarchy, we have instead an oligarchy. Also, it is a self-governing republic wherein elections used to take place for the choosing of a particular ruler. Apart from that, students, another feature of Gana Sangh is that the social stratification is very less. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जितना अगर मैं कहूँ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बहुत ज्यादा थी, इसका मतलब ये है कि एक सोसाइटी के अंदर अलग अलग ग्रुप्स रह रहे थे जो एक दूसरे से आइडेंटिफाई नहीं करते। अगर मैं कह रही हूँ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बहुत कम है, यानी कि सोसाइटी का जो कॉम्पोजिशन है उसमें हमें एक ही तरह के लोग, चाहे से वो एक ही ट्राइब के हों, चाहे से एक ही एथनिसिटी के हों, तो हमारे को डाइवर्सिफिकेशन कम देखने को मिलती है। जब हम गणसंघ की बात करते हैं तो यहां पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बहुत ही ज्यादा कम है। Why? Because we only find two categories. We only find two categories of people living in the Ganasangh, wherein the first class is that of Kshatriya, and apart from that, the second class are the Das or the slaves. तो बेसिकली हम देखेंगे कि जो क्षत्रिय वर्ण के लोग थे वो अपने एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर रह रहे हैं, सब एक दूसरे से किनशिप टाइज के बेसिस पर रिलेटेड है। किनशिप मतलब एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट है। और यहाँ पर हम देखते हैं क्षत्रियों के अलावा हमें जो दूसरी क्लास यहाँ देखने को मिलती है, दीज आर दी स्लेव्स, एंड दीज स्लेव्स वर डेलिबरेटली ब्रॉट बाय द क्षत्रियाज सो दैट दे कुड एक्सपैंड एग्रीकल्चर, so that they could expand agriculture in their respective गणसंघ। तो जब हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करें तो महाजन पद में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे हर वर्ण के लोग रह रहे हैं।
जबकि अगर हम मोनार्किकल स्टेट की बात करें तो वहां पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे हर वर्ण के लोग रह रहे हैं। जबकि स्टूडेंट्स अगर हम गण संघ की बात करें तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बहुत कम है, जिसमें मेजरली हम देखते हैं सारे लोग क्षत्रिय वर्ण के हैं, और उसके अलावा जो दूसरी कम्युनिटी हमें देखने को मिलेगी वो स्लेव्स की होती हैं, विच आर ब्रॉट इन टू एक्सपैंड एग्रीकल्चर। Moreover, students, if you talk about the idea of land ownership in a Gansang, the land is community owned. The land is community owned. And that is why, students, in the very beginning, I had told you these are the reminiscence of Vedic tribal culture, wherein you will find community ownership and the power is diffused in the people. And apart from that, even if you find a group of people who have more power, these all are elected by the people of that particular Ganasang, and that is why we call them self-governing republics, also representing a democratic system in ancient India. Apart from that, students, you will see that because it is a oligarchy, you will not find a single hereditary monarch. नेचुरली ओलिगार्की है, मोनार्की तो है नहीं, तो यहाँ पर राजा होने की जो बात है वो लगती ही नहीं है। इस टाइप की ओनरशिप हमारे को देखने को नहीं मिलती। स्टूडेंट्स, जब हम कॉलोनियल हिस्टोरियंस की बात करते हैं, हम जानते हैं कि हमारे देश का जो इतिहास है उस पे सबसे पहले हक जमाया था किसने? ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने हमारे देश के लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगाया दैट इंडिया इज अ लैंड ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म। ओरिएंटल डिस्पोटिज्म का मतलब क्या होता है? एक राजा है, वो अपनी मर्जी की चलाता है, सारी वेल्थ कॉन्सेंट्रेट करके रख लेता है, और जो बची हुई जनता होती है वो भूखमरी से और भिखारी की तरह जी रही होती है। अगर आपके सामने आज के बाद कोई भी और ऐसी बात बोले तो उनको आप गणसंघ का एग्जाम्पल देंगे। एंशियंट इंडिया के अंदर गण संघ एंड इवन द वैदिक ट्राइबल कल्चर, स्टूडेंट्स, आर एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल एग्जाम्पल्स that help us in understanding that how we as Indians used to believe in sharing of power, and in that context the early seeds of democracy can be traced in India as early as in the ancient period. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक स्टेट स्ट्रक्चर की बात कर ली है, इसके साथ आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्टेट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। दूसरे हमारे पास नेचुरली क्या है? दूसरे हमारे पास मोनार्किकल स्टेट्स हैं। मोनार्किकल स्टेट्स ओलिगार्किकल स्टेट से एकदम अलग होते हैं। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक आदमी होता है जिसके हाथ में सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड होती है, और उसे हम कहते हैं बीइंग अ सोवरेन किंग। सो ही इज अ hereditary ruler who has the right to make all the decisions. So he has the right to make all the decisions, and that is why he is a powerful ruler. He is a person with all the power in any particular empire. यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने देखा था कि लेटर वैदिक पीरियड में जो राजा होते थे वो एक ही चीज की तरफ फोकस कर रहे थे। सारे टाइम उनकी एक ही कोशिश रहती थी कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि मेरी पोजीशन जो है वो हेरिडिटरी हो जाए। इस पोजीशन को हेरिडिटरी करने के लिए, लेजिटिमेसी के लिए, ये लोग क्या करते थे? पुरोहित की मदद लेते थे और इलेबोरेट यज्ञ किया करते थे, जैसे कि अश्वमेध, वाजपेय एंड राजसूय। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे महाजनपद पीरियड आते आते ये प्रैक्टिस एक नॉर्म की तरह एस्टैब्लिश हो जाती है, वेर इन द पोजिशन ऑफ किंग नाउ बिकम्स हेरिडिटरी, एंड दिस इन टर्न लीड्स टू राइज ऑफ एम्पायर्स इन इंडिया. Apart from that, students, in monarchical states, one thing that you are going to observe is the presence of a centralized standing army. This, students, is a permanent corps of troops which are recruited and maintained by the state, and this is something that you will not find in गणसंघ. इंस्टेड स्टूडेंट्स, गणसंघ में क्या होता है? मान लीजिए कि हमारे पास में लेट्स से एक पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमारे पास 3 ट्राइब्स रह रही हैं, ए, बी और सी. अब ये जो ए, बी और सी हैं, इसमें से लेट्स से 2 एल्डर मेंबर्स हैं, इसमें से 2 एल्डर मेंबर्स हैं, इसमें से 2 एल्डर मेंबर्स हैं. इन 6 मेंबर्स ने मिलके एक ओलिगार्की बना रखी है. अब ये जो ए ट्राइब है, इसने
100 आदमी रख रखे हैं टेम्पररी, टेम्पररी आदमी हैं जो कि लड़ाई के वक्त काम आएंगे। इसने रख रखे हैं 50 और इसने रख रखे हैं लेट्स से 150। अब मान लो इन तीनों ने मिला के एक गण संघ, एक ओलिगार्की, एक सेल्फ गवर्निंग गण संघ बना रखा है, एक सेल्फ गवर्निंग रिपब्लिक, और इनके ऊपर कोई थ्रेट आता है। अब जब इनके ऊपर थ्रेट आता है तो ए, बी और सी मिलकर डिसीजन लेंगे कि हमें अपनी आर्मीज को यूनाइट करना है और बैटल स्टेज करना है। तो ये तो होता था ओलिगार्की का आर्मी सिस्टम। जबकि अगर हम मोनार्किकल स्टेट की बात करें, अगर हम मोनार्किकल स्टेट की बात करें तो यहाँ पे परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी होती थी जिसको सैलरी दी जाती थी बकायदा, और 12 महीने ये स्टेट के लिए क्या काम करती थी, 12 महीने ये स्टेट के लिए खड़ी रहती थी। एंड सोल्जर्स जो थे वो कोई और प्रोफेशन के अंदर नहीं जाया करते थे। जबकि अगर हम ओलिगार्की की बात करें, जब जरूरत नहीं है तो ये 100, 50 और 150 लोग जो हैं दूसरे प्रोफेशन भी कर लिया करते थे। तो परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी इज ओनली अ फीचर ऑफ मोनार्किकल स्टेट्स। So with this, students, we have understood about the two major political structures that were dominating the political landscape during the Mahajanpad period. And with this, we are going to proceed further and understand about the changes in the economy between 600 to 300 BC. यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास में अपर गंगा वैली के अलावा हम गंगा यमुना दोआब तक फैल गए हैं। तो बेसिकली हम यूपी से निकल के बिहार की तरफ पहुंच चुके हैं। बिहार में पर्टिकुलरली अगर बात करी जाए तो विदेह रीजन के अंदर हम जाके अब सेटल हो चुके हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखेंगे कि इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में एक्सपेंशन का हमें क्या फायदा हुआ। पहली बात तो एक्सपेंशन हम क्यों कर पा रहे हैं, एक्सपेंशन हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास आयरन प्लाव है। बेसिकली अगर हम इंडिया की ज्योग्राफी की बात करें, यहाँ पे मैं आपके लिए मैप बना रही हूँ, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है। सो बेसिकली जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, when we move in this direction, you will see that the annual percentage of rainfall, the annual percentage of rainfall is something that increases by 15 to 25 सेंटीमीटर। यानी कि वेस्ट इंडिया से ईस्ट इंडिया की तरफ जैसे एक स्टेट आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आप देखेंगे कि एनुअल प्रेसिपिटेशन का लेवल बढ़ जाएगा। एनुअल प्रेसिपिटेशन का लेवल अगर बढ़ रहा है तो ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स थिक वेजिटेशन, इट इंडिकेट्स थिक वेजिटेशन। तो वेस्ट की तरफ हम बंजर पड़े, हमें भी मालूम है एरिड एरिया है, ठीक है, लेकिन जब हम ईस्ट की तरफ जाने लगते हैं तो हमारे को बहुत सारे जंगल देखने को मिलते हैं। अब जंगलों की प्रॉब्लम यह है कि वहां की जो सॉइल होती है वो बहुत हार्ड होती है और उसको टिल करना बहुत मुश्किल होता है। और इसी वजह से आयरन प्लाव का जो इन्वेंशन है और आयरन टूल्स का जो इन्वेंशन है उसने हमें ईस्ट इंडिया में एक्सपैंड करने में हेल्प किया, स्पेसिफिकली बिहार के रीजन में। सॉइल हार्ड है कोई बात नहीं, हमने उसको टिल कर लिया आयरन प्लाव की वजह से। लेकिन एक जो इसका फायदा है वो ये है कि जब स्टूडेंट्स हम ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ जाते हैं विच आर रिच इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज, दिस हेल्प्स अस इन गेटिंग मोर प्रोडक्ट्स इन कंपैरिजन टू व्हाट वी वुड हैव गॉट इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं बहुत सारे, और उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे ईस्ट इंडिया जो है वो मेटल रिच है, मेटल रिच है ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पे आपको बहुत सारे मेटल्स मिलेंगे। So that is why students you will see that the expansion towards eastern India helped us because first of all there is high precipitation. Apart from that the soil quality is extremely fertile. तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे को ज्यादा एग्रीकल्चरल सरप्लस मिलेगा। और उसके अलावा अगर हम टूल्स की बात करें तो हमें मेटल डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, और उसके अलावा हमारे को बहुत सारा फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिल रहा है। और इकोनॉमी के लिए ये सारे ही पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं क्योंकि ये हमारे को किसी एम्पायर की पावर इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। तो जो भी एम्पायर बिहार में बैठा होगा आप देखेंगे वो बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो जाएगा। मोर ओवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे को इस पीरियड की टेक्स्ट्स के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो हमारे को एक किताब मिलती है विच इज रिटन बाय पाणिनि। पाणिनि स्टूडेंट्स वाज वन पर्सन हु वाज वर्किंग ऑन संस्कृत ग्रामर। तो पाणिनि की जो किताब है इसका नाम है अष्टध्यायी, अष्टध्यायी। और इस किताब के अंदर हमें एक टर्म मिलती है जिसका मतलब है जिसको बोलते हैं सुहाली।
सुहाली का मतलब होता है अ वेल प्लाउड फील्ड। तो इस टर्म की mere presence in the Mahajanpad period tells us that plowing from iron plows had become an important feature which led to agricultural surplus. तो इस टर्म को हमें कहाँ से देखते हैं, हम इसे पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलती है। इसका मतलब क्या होता है, वेल प्लाउड फील्ड। और हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स आजकल एंशिएंट इंडिया के अंदर से बहुत सारे टर्म्स एंड मीनिंग्स आते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो सबसिस्टेंस पैटर्न चेंज होने का कारण क्या है, एक्सपेंशन इन ईस्ट इंडिया, बिकॉज ऑफ विच वी आर फाइंडिंग मोर रेनफॉल, तो इरिगेशन की जरूरत नहीं है। उसके अलावा सॉइल ऑलरेडी फर्टाइल है, तो हम देख रहे हैं हमारी जो उपज है वो बहुत ज्यादा हो रही है। मोर ओवर सुहाली जैसे शब्द हमें बताते हैं कि प्लाउइंग एक रेगुलर फीचर बन गया एग्रीकल्चर में। और उसके अलावा हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो मैं आपको काफी बार ऑलरेडी बता चुकी हूं दैट वी हैव एन आयरन प्लाउ, और आयरन प्लाउ गेम चेंजर होगा हमारे लिए, और इसकी वजह से इंडिया में सेकेंड अर्बनाइजेशन आ जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ईस्टवर्ड एक्सपेंशन और आयरन के यूज का हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या रहा। ये जो स्टोरी है ऑलरेडी हम फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ही हमारे पास सरप्लस होता है, सरप्लस की वजह से हम क्या करते हैं, टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। मान लो कि मैंने एक साल में एज एन इंडिविजुअल 100 किलो गेहूं उगा लिया, ठीक है, मैंने 100 किलो गेहूं उगा लिया। अब मेरे पास में क्या है, नॉट इन एन ईयर, मान लो एक महीने में मैंने 100 किलो गेहूं उगा लिया। अब मैं खुद तो खा नहीं सकती अकेले 100 किलो गेहूं, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास में जो एक्स्ट्रा क्रॉप है, स्टेट जिसके अंदर मैं रह रही हूँ, जिस सिटी के अंदर मैं रह रही हूँ, वहां की जो सरकार है वो मुझसे डिमांड करेगी जो तुम्हारे पास एक्सेस है उसको टैक्स में दे दो, ठीक है। एज अ रिजल्ट वी सी दैट देयर इज अ इलेबोरेट टैक्सेशन सिस्टम विच विल कम इनटू बीइंग। अब जैसे ही स्टेट के पास में, किसी राजा के पास में टैक्सेस आ गए हैं, पैसे का सरप्लस हो गया है, तो वो क्या करेगा, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की कोशिश करेगा और फर्दर एक्सपेंशन करने की कोशिश करेगा, जिसके लिए वो स्टैंडिंग आर्मी बनाएगा। ये यहां पर आप सरप्लस प्लस टैक्स प्लस स्टैंडिंग आर्मी, these three become the core base. These three become the core base for the foundation of a state system, and this is something that can be considered as the impact of the changes in the economy that ultimately leads to the rise of empires and these 16 Mahajanpads. With this students, let's proceed further and understand about the names of the different towns and cities that had emerged during the Mahajanpad period. यहाँ पे स्टूडेंट्स बेसिकली इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैंने क्या कर रखा है, बहुत सारे टर्म्स एंड मीनिंग्स डाल रखे हैं। टर्म्स एंड मीनिंग्स जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया काफी ही इंपॉर्टेंट है हमारे एंशिएंट इंडिया के अंदर। आजकल सीधे सीधे विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया व्हाट डज दिस टर्म मीन, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली समझ लेंगे कि हमारे पास में किस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी। सबसे पहले स्टूडेंट्स विलेज की बात करते हैं। विलेज हमारे देश की हमेशा से स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रही है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शब्द जब भी मैं बोलूंगी आपके माइंड में इमीडिएटली आ जाना चाहिए, शी इज टॉकिंग अबाउट अ विलेज। तो विलेज को हम बोलते हैं ग्राम। उसके अलावा स्टूडेंट्स, क्योंकि हम देख रहे हैं ट्रेड में राइज हो रहा है, क्योंकि क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन हो रही है, इसकी वजह से महाजनपद पीरियड में बहुत सारे मार्केट टाउन्स भी इमर्ज होते हैं। इन मार्केट टाउन्स को हम बोलते हैं निगम। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं हमारे पास प्रॉपर सिटीज हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास में जो महाजनपद है, हर महाजनपद की एक कैपिटल है, और वो कैपिटल जो होगी वो ज्यादा अर्बन होगी इन नेचर, इट इज गोइंग टू बी अ सिटी ऑल टुगेदर। तो इन सिटीज को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं नगर। तो 3 टर्म्स हमने डिस्कस कर ली है, ग्राम, नगर और निगम। निगम स्पेसिफिकली आपको याद रखना है बिकॉज इट कॉरेस्पॉन्ड्स विद अ मार्केट टाउन विच इज एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज। With this students, let's proceed further and we have another term here which is known as पुरा। पुरा जो टर्म है स्टूडेंट्स, इसको भी किसी टाउन या सिटी को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता था। हाउएवर द डिफरेंस बिटवीन अ नगर एंड पुरा इज दैट पुरा इज ऑलमोस्ट ऑलवेज फोर्टिफाइड। In that context students, we can say that most of the capital cities
मोस्ट ऑफ द कैपिटल सिटीज मे हैव बीन अ पुरा, क्योंकि कैपिटल सिटी को फोर्टिफाई करना एक एम्पायर की सेफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता था. Apart from that, students, you will see that the fortified capitals are also known as Durg, and these can also be seen as being planned royal cities. यहाँ पे दुर्ग की अगर बात करी जाए तो बचे हुए एम्पायर से इसको हाईवेज के थ्रू कनेक्ट किया जाता था, जिन्हें हम बोल रहे हैं राजमार्ग. तो ये कुछ मेजर टर्म्स एंड मीनिंग्स हैं जो हमारे को डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रहे हैं. इनको सिंपली हमें याद करना है, मेमोराइज करना है कि इस टर्म का मतलब क्या होता है. चलिए स्टूडेंट्स, इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रेड के अंदर कैसे फ्लरिशमेंट हो रहा है. मैंने आपको ऑलरेडी फीचर्स ऑफ महाजनपद में बताया कि स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा फ्लरिश करने लगती है. ट्रेड की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इस टाइम पे लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस दोनों ही ट्रेड हो रही है. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड उसको कहते हैं हम जिसमें हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर जाके ट्रेड कर रहे हैं. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इसलिए होगी स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे देश में इस टाइम पे फॉरेन इन्वेजन्स होने वाले हैं. तो जब हम इरानियन मैकेडोनियन इन्वेजन्स पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड फ्लरिश कर रही है. Apart from that, students, we also have short distance trade happening, and in that context you will see that there are two major trans-regional routes which are emerging during the Mahajanpad period. Now students, these two routes are known as Uttar Path and Dakshin Path. उत्तर पथ माने जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है वो उत्तर पथ हो गया और जो साउथ की तरफ जा रहा है वो दक्षिण पथ हो गया. और ये दोनों ही जो ट्रांस रीजनल रूट्स हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे आइटम्स ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए यूज करी जाती थी. ये जो रूट्स थी ये बहुत ही मनी यील्डिंग रूट्स थी क्योंकि ट्रेड बहुत ग्रैंड स्केल पर हो रही थी और यहाँ से हम टोल टैक्सेस के द्वारा बहुत सारा पैसा कमाते थे. तो मान लीजिए उत्तर पथ के रास्ते में जो जो किंगडम्स पड़ रहे हैं, अगर वहां से कोई कार वहां जा रहा है कुछ सामान लेके तो उसको बीच में रोक लिया जाएगा कि भाई पैसे दो, टैक्स भरो, और इसकी वजह से वो जो एम्पायर है वो ज्यादा पावर में आ जाएगा. दक्षिण पथ की स्टूडेंट्स अगर खास करके बात करी जाए तो दक्षिण पथ साउथ की तरफ जा रहा है और आप देखेंगे कि मौर्यन और पोस्ट मौर्यन पीरियड में दक्षिण पथ की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि इस टाइम पे हम देखते हैं चोलास, चेरास और पांड्यास पावर में आएंगे जो कि स्पाइसेस में और पर्ल्स में और प्रेशियस मेटल्स में बहुत ज्यादा ट्रेड करेंगे. उत्तर पथ की अगर हम बात करें तो उत्तर पथ की तरफ हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल्स जो है उनकी सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुआ करती थी. तो उत्तर पथ और दक्षिण पथ का इमर्जेंस फाइनली हमें क्या बता रहा है, दैट द ट्रेड इज फ्लरिशिंग ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड विच विल रिजल्ट इनटू इवन मोर अर्बनाइजेशन. With this, students, let's proceed further and understand about the rise of trading classes. हमने यहाँ पर देखा कि उत्तर पथ और दक्षिण पथ जो है वो हमारे को दिखा रहे हैं कि हमारे देश में बहुत ज्यादा ट्रेड हो रही है. अब ट्रेड हो रही है तो कोई ट्रेड कर भी रहा होगा. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ट्रेडिंग क्लासेस इमर्ज हो जाती हैं महाजनपद पीरियड में जिनको बोला जाता है सेठीज. ट्रेड के अलावा स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं जितनी राइज ट्रेड में आ रही है उतना ही ज्यादा राइज हमारे एग्रीकल्चरल सरप्लस में आ रहा है. और यहाँ पे जो लोग बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर करते थे उनको हम कहते थे गहापति. इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं. सो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास है गहापति वो होते थे जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती थी. दीज पीपल वर वेल्दी प्रॉपर्टी ओनर्स हु वर एसोसिएटेड विथ dominance over large regions of land and at the same time these were agricultural magnates. तो यहाँ पे landed aristocracy जो है, landed aristocracy who have hefty amounts of land in their hands are known as Gahapatis, and their emergence is something that can be traced from the Mahajanpad period. Moreover, students, the second community that you will see rising during the Mahajanpad period are the Sethis, and they are rising to power due to the extensive trade that is happening in this particular period.
So here students, the Sethis are a high level businessman. कोई भी हाई लेवल बिजनेसमैन को सेठी बोला जाता था. आज भी अगर आप देखें तो जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए हम क्या कहते हैं, भाई सेठ आदमी. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कनेक्शन इन एंशिएंट टर्म्स के साथ हो सकता है. Now students, when we talk about the Sethis, these people are associated with high level trade, and these people were also in the profession of money lending. मनी लेंडिंग जो है, इट हैज बीन सिंस द एंशिएंट पीरियड एसोसिएटेड विथ बिजनेस क्लास. स्पेसिफिकली अगर बात करी जाए तो ये जो सारे सेठीज हैं ये वैश्य वर्ण से आते थे. वैश्य वर्ण के जो लोग थे वो सेठीज हुआ करते थे. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेठीज जो हैं मनी लेंडिंग का काम करते थे, जिसकी वजह से दीज वर इन्वेस्टर्स, फाइनेंसियर्स और दे वर मर्चेंट्स. तो हमारे पास में दो मेजर टर्म्स हैं महाजनपद पीरियड में. वन इज एसोसिएटेड विद लैंडेड मैग्नेट्स एंड द सेकंड वंस आर important traders, wealthy traders in this particular period. With this students, let's proceed further and understand about other changes in the society. सोसाइटी के अंदर चेंजेस की बात करी जाए तो ट्रेड और एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन की वजह से फायदा किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है वैश्य वर्ण को, जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं. मोर ओवर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो इनडायरेक्टली बेनिफिट कौन करेगा? इनडायरेक्टली बेनिफिट करेंगे क्षत्रिय, क्योंकि टैक्स पे करने की लाइबिलिटी किसके ऊपर है? वैश्य के ऊपर है. तो ये जो भी कमा रहे हैं उसका एक मेजर चंक निकाल के रूलिंग क्लास ले जाएगी. जब रूलिंग क्लास इसको ले जाएगी तो इसमें से कुछ पार्ट निकाल के दान में एक इसको दे देंगे, ब्राह्मण को दे देंगे. तो एक का फायदा जो है वो चेन में चल के इन दोनों को भी फायदा करेगा. However, students, when we talk about the lower words, when you talk about the lower words, in that, when you talk about the Shudra, their status is something which is not really rising at this particular point of time. In fact, students, we see rise of one more word which is even below the status of Shudra. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर वर्ड को पढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ. जब भी हम अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, जब भी हम अनटचेबिलिटी की बात करते हैं तो नेचुरली स्टूडेंट्स के माइंड में पॉपुलर कल्चर की वजह से ऐसा आता है कि अनटचेबिलिटी जो है वो शूद्र के साथ करी जाती थी. लेकिन स्टूडेंट्स ये जनरलाइजेशन गलत है. आप देखेंगे शूद्र जो हैं वो एंशिएंट पीरियड में आगे जाके एग्रीकल्चरलिस्ट्स बन जाएंगे, जबकि अनटचेबिलिटी जो है वो एक अलग वर्ण के साथ करी जाती थी, जिन्हें चांडाल या फिर अंतयज, चांडाल या फिर अंतयज बोला जाता था. और इनको कभी कभी फिफ्थ वर्ण भी बोला जाता है. और ये वो लोग हैं जिनके साथ समाज में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी जाती थी, जिसके अर्लीस्ट एविडेंसेस हमें महाजनपद पीरियड से मिलने लग जाते हैं. Now when we talk about these people students, who were the Chandals? Now when we talk about शूद्र, शूद्र वो लोग हैं जो उसी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं और बचे हुए 3 वर्णों के लिए एज सर्वेंट्स काम कर रहे हैं. जबकि अगर चांडाल्स की बात करी जाए तो ये सेम विलेज या सेम सिटी में नॉर्मल लोगों के साथ नहीं रहते थे. रादर दीज वर दोज पीपल who were surviving on the edges of settlements, and these people are said to have been either forced by the people or the encroaching settlers to leave their habitats and live at the fringes of the empire. Moreover, if we talk about the subsistence method of these people who are known as Chandals, unlike the sedentary people, they were still involved in hunting and food gathering. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हो सकता है कि वो लोग जो अभी भी अपने ट्राइबल कल्चर से एसोसिएटेड थे, एग्रीकल्चर नहीं करना चाहते थे, नोमैडिक थे और हंटिंग और गैदरिंग से अपनी जीवन का गुजर बसर करते थे, उनको जब सेडेंट्री लोगों ने देखा तो वो उन्हें देख के घबरा गए, क्योंकि ये दोनों की लाइफस्टाइल एक दूसरे से बहुत अलग है. और इसीलिए सेडेंट्री लोगों ने बोला नहीं, ये तो ठीक नहीं है, इनको हटाओ यहाँ से, ये हमारे साथ नहीं रह सकते, और उनको पुश कर दिया कि तुम जाके बाउंड्री एरियाज में रहो. यही वो लोग बनते हैं आगे जाके जिनसे हम अनटचेबिलिटी रखते हैं और इनको हम नॉर्मल सोसाइटी का पार्ट नहीं मानते और इनको हम सिटीज एंटर करना अलाउ नहीं करते.
ठीक है, तो ये जो पांचवा वर्ण है इसका उदय हम महाजनपद पीरियड में देखते हैं, एंड दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द शूद्रास, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट शूद्रास अनटचेबिलिटी इज नॉट अ नॉर्म विद दिस वर्ण, बट व्हेन यू टॉक अबाउट चांडाल्स और अंत्यज you will definitely find untouchability happening. So with this, students, we have understood about the major social, economic and political changes that had happened during the second urbanization period. We have also seen a list of all the major Mahajanpads, the 16 Mahajanpads, along with their capitals and modern day location. अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हम प्रोसीड फर्दर करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू टेक इनटू कंसिडरेशन वन सिंगल महाजनपद विच बिकेम द मोस्ट पावरफुल इन कंपैरिजन टू द अदर महाजनपद्स ऑल टुगेदर. दिस महाजनपद स्टूडेंट्स इज नन अदर देन मगध. मगध की अगर बात करी जाए तो प्रेजेंट डे में कहाँ पे है, ये बिहार में है. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो क्या क्या फायदे होते हैं. सॉइल फर्टाइल है, इरिगेशन के लिए बहुत सारा पानी है क्योंकि बहुत सारी नदियां भी हैं, और उसके अलावा रेनफॉल भी खूब हो रही है. मोर ओवर जो एरियाज थिकली फॉरेस्टेड होते हैं वहां से हमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी की वुड मिल जाएगी. उसके अलावा मेटल रिच रिसोर्सेज हैं स्टूडेंट्स ये, और इसकी वजह से हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था जो भी महाजनपद इस एरिया में आएगा वो औरों के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल हो जाएगा क्योंकि उनके हाथ में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. That is why, students, you will see that in comparison to other Mahajanpads, Magad was specifically successful in quickly capturing a lot of power. In this context, students, let's now talk about the Magad. Magad, students, is corresponding to present day districts of Patna and Gaya in Bihar. मगध की दो कैपिटल्स थी. पहली कैपिटल थी इसकी गिरिव्रज, जिसको राजगृह और राजगीर भी बोला जाता है. उसके बाद हम देखते हैं आगे जाके मगध की एक और कैपिटल बन जाती है विच इज पाटलिपुत्र, एंड इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद द मॉडर्न डे सिटी ऑफ पटना. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे माइंड में जो क्वेश्चन आना चाहिए वो ये है कि मगध ही क्यों, ऐसा क्या हुआ कि मगध ही बचे हुए 16 महाजनपद के कंपैरिजन में ज्यादा पावर में आ गया. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम रीजंस ट्रेस करते हैं जिसकी वजह से मगध राइज कर गया. यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं पहला रीजन जो है जिसकी वजह से मगध ज्यादा पावर में आता है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नंबर 1 2 कैपिटल्स, एंड एट द सेम टाइम बोथ ऑफ द कैपिटल्स दैट इज गिरिव्रज एंड पाटलिपुत्र वर केयरफुली लोकेटेड इन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस. फॉर इंस्टेंस अगर हम गिरिव्रज की बात करें स्टूडेंट्स, तो गिरिव्रज जो है इट वॉज सराउंडेड बाय हिल्स on all the sides. किसी भी एम्पायर को अगर आपको जड़ से खत्म करना है तो आप क्या करोगे, आप उसकी कैपिटल पे अटैक करोगे. जैसे ही कैपिटल डिस्ट्रॉय होगी एम्पायर डिस्ट्रॉय हो गया. इसीलिए कैपिटल्स की लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिकली चूज करी जाती थी जिससे कि दुश्मन जो है वो इजीली कैपिटल में एंटर ना कर पाए. इसी वजह से आप देखेंगे गिरिव्रज जो है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है क्योंकि चारों तरफ से ये हिल्स से सराउंडेड था, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट वॉज इम्प्रेग्नेबल, यानी कि इस सिटी को ब्रीच करना बहुत ही मुश्किल था. इसके अलावा अगर हम पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र जो है स्टूडेंट्स इट वॉज सराउंडेड बाय रिवर्स. ये नदियों से सराउंडेड था. अब क्योंकि ये नदियों से सराउंडेड था इसलिए हमार को तो कम्युनिकेशन वाइज और ट्रांसपोर्टेशन वाइज बहुत ईज थी. जो लोग पाटलिपुत्र में बैठे हैं वो इजीली बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन चैनल्स बना सकते हैं. लेकिन अगर कोई एनिमी दूसरी तरफ से आ रहा है तो उसके लिए नदी पार करके पाटलिपुत्र पे अटैक करना बहुत ही मुश्किल था. यहाँ पे दोनों ही कैपिटल्स बहुत स्ट्रेटेजिक हैं और इसकी वजह से हम देखते हैं मगध को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है. Apart from that, students, the other reasons are such that we have already discussed. For instance, I have told you that when we talk about the location of Magad, it lies in one of the most resource-rich areas, and this particular area also has fertile alluvial soil.
रिवर प्लेन में है, ये गंगा नदी के आसपास में है, तो यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ही रिच है, बहुत ही फर्टाइल है, और इसकी वजह से एग्रीकल्चरल सरप्लस जो है वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। मोर ओवर इरिगेशन की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं। तो इस वजह से एग्रीकल्चर के डोमेन में अगर देखा जाए तो मगध की लोकेशन का फायदा ही फायदा है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं मगध का जो एरिया है वो फॉरेस्ट रिच है। यहाँ पे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी आयरन मिलती है, टिम्बर मिलता है, और उसके अलावा हमें लार्ज सप्लाई ऑफ एलिफेंट्स मिलता है। आप देखेंगे स्टूडेंट्स, आर्मी के अंदर घोड़े से ज्यादा पावरफुल जो साबित होते हैं वो एलिफेंट्स होते हैं, और स्पेशली एलिफेंट्स किस लिए काम आते हैं? फोर्ट्स तोड़ने के काम आते हैं। और मार्शी एरियाज के अंदर, मार्शी एरियाज जो स्वम्प एरियाज हैं, जिनमें आधा पानी है, कीचड़ वाले जो एरियाज हो गए, वहां पे घोड़े से बेटर हाथी चल पाता है, फ्लैट फुट होता है उसका, इजीली वो चल पाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इतने थिक फॉरेस्ट्स की वजह से एक तो हमें हाई क्वालिटी का आयरन मिल रहा है, हाई क्वालिटी के आयरन के अलावा हमें हाई क्वालिटी की वुड मिल रही है, टिम्बर मिल रहा है, और अपनी आर्मी को बेटर करने के लिए हमें बहुत सारे एलिफेंट्स मिल रहे हैं। ये सारे रीजंस कंबाइंड हमें वो रीजंस दिखाते हैं जिसकी वजह से मगध बाकी महाजनपद के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल हो गया। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और एक एक करके मगध के मेजर रूलर्स की बात करते हैं। अगर हम मगध की सक्सेस की बात करें तो हमने ज्योग्राफिकल रीजंस तो ट्रेस कर लिए हैं, लेकिन ज्योग्राफिकल रीजंस के अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि मगध के जो पॉलिटिकल रूलर्स थे, मगध की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, वो भी इक्वली स्ट्रॉन्ग थी, और एक के बाद एक बहुत पावरफुल राजा यहाँ पर आते हैं, जिसकी वजह से ये महाजनपद बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा पावर में आ जाता है। अगर हम मगध की पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें, if you talk about the political history of Magad students, you will see rise of 3 successive dynasties. In that, the first dynasty is known as the Haryank dynasty. The Haryank dynasty will then be succeeded by the Shishunag dynasty, and then the Shishunag dynasty will be preceded by the most powerful dynasty of the Magad empire, which is the Nanda dynasty. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई हर्यंक डायनेस्टी में कौन से रूलर्स थे, फिर शिशुनाग डायनेस्टी में कौन से रूलर्स थे, एंड देन नंद डायनेस्टी में कौन से रूलर्स थे। हर्यंक डायनेस्टी की बात करी जाए स्टूडेंट्स तो इसके फाउंडर हैं बिंबिसर। हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर हैं बिंबिसर। बिंबिसर ने अपनी और मगध की पावर बढ़ाने के लिए 3 pronged पॉलिसी लगाई, 3 डायरेक्शन की पॉलिसी लगाई इन्होंने, 3 pronged पॉलिसी। इस 3 पार्ट की पॉलिसी के डायरेक्शंस क्या थे? एक तो थे मैट्रिमोनियल अलायंसेस, दूसरे थे अगर कोई एम्पायर हमारे जितना ही स्ट्रांग है तो उससे दुश्मनी की जगह दोस्ती कर लो, और तीसरा अगर हमारे आसपास के कोई एम्पायर्स हैं जो कि वीक हैं तो उनको कॉन्कर कर लो, जिससे कि एम्पायर को एक्सपैंड किया जा सके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं इन 3 टूल्स के थ्रू बिंबिसर जो हैं वो अपनी पावर बढ़ाना शुरू करते हैं। अगर हम मैट्रिमोनियल अलायंसेस की बात करें तो बिंबिसर ने 3 शादियां करी। ही गॉट मैरिड टू 3 प्रिंसेसेस। इसके अंदर स्टूडेंट्स एक तो हमारे पास में है, एक है हमारे पास में लिच्छवी प्रिंसेस हैं, उसके अलावा हमारे पास में एक मद्र प्रिंसेस हैं, और उसके अलावा हमारे पास में एक कोशालन प्रिंसेस है। इन 3 प्रिंसेसेस से शादी करते हैं बिंबिसर। अब यहाँ पे माइंड में सवाल आएगा कि भाई ये 3 शादियां करने से पावर कैसे बढ़ रही है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे ये जो कोशालन प्रिंसेस हैं, दिस कोशालन प्रिंसेस स्टूडेंट्स, व्हेन यू टॉक अबाउट हर, दिस लेडी ब्रॉट द एंटायर सिटी ऑफ काशी एज डाउरी। तो हम देख रहे हैं मगध के अंदर क्या ऐड हो गया, पूरी एक नई सिटी ऐड हो गई जो कि है काशी। उसके अलावा हम देखते हैं कि भाई जिस भी एम्पायर के साथ में आपके मैट्रिमोनियल टाइज होंगे वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। मद्र प्रिंसेस की बात करें स्टूडेंट्स तो मद्र जो है
पंजाब के अंदर एरिया था, तो ये जो प्रिंसेस आई थी पंजाब की तरफ से आई थी। जो लिच्छवी प्रिंसेस है स्टूडेंट्स, इनकी अगर बात करी जाए तो शी इज गोइंग टू गिव द नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ द हरियंक डायनेस्टी। शी इज गोइंग टू बी द मदर ऑफ द नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ बिंबिसर हु इज अजात शत्रु। तो यहां पर मैट्रिमोनियल अलायंसेस का क्या फायदा हुआ? एक तो हमने अपनी पावर को स्ट्रेंथन कर लिया, उसके अलावा टेरिटरी वाइज अगर देखा जाए तो इन शादियों की वजह से बिंबिसर ने काशी अपने एम्पायर में ऐड कर लिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे, अगर हम वीक नेबर्स की बात करें तो हम देख रहे हैं अंग करके हमारे पास एक महाजनपद है जिसकी कैपिटल है चंपा, और ये एक वीक नेबर था बिंबिसर का, और इसीलिए इन्होंने अंग को कैप्चर कर लिया। तो हमारे पास मगध के अंदर बिंबिसर के थ्रू क्या क्या ऐड किया गया? काशी और अंग। फ्रेंडशिप विद स्ट्रॉन्ग रूलर्स की अगर बात करी जाए स्टूडेंट्स, तो बिंबिसर की रेन में हमारे पास एक स्पेसिफिक महाजन पद है जो कि इफ नॉट मोर देन इट इज नॉट लेस पावरफुल इन कंपैरिजन टू मगध, एंड दिस पर्टिकुलर महाजन पद इज नोन एज, सॉरी, इट्स नोन एज अवंती। इट इज नॉट अंग, इट इज नोन एज अवंती। अवंती जो है स्टूडेंट्स उज्जैन के एरिया में पड़ता था, और इसके जो रूलर हैं उनका नाम है प्रद्योत महासेन। अवंती की पावर भी बहुत ज्यादा थी। महाजन पद मगध की अगर हम बात करें तो उसके कंपैरिजन में इक्वली पावरफुल था अवंती। यहां पे बिंबिसर ने दिमाग लगाया कि भाई इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, इससे बेटर है कि मैं इनसे फ्रेंडशिप टाइज रखूं। फ्रेंडशिप के तहत बिंबिसर ने क्या किया? बिंबिसर ने एक बार प्रद्योत को जॉन्डिस हो जाता है, तो एक बार जब प्रद्योत को जॉन्डिस हो जाता है तो बिंबिसर अपने कोर्ट के जो रॉयल फिजिशियन हैं जिनका नाम है जीवक, इनके रॉयल फिजिशियन है जीवक, इनको ये प्रद्योत महासेन के जॉन्डिस को क्योर करने के लिए भेज देते हैं और प्रद्योत ठीक हो जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं प्रद्योत बहुत खुश हो जाते हैं, और बिंबिसर और प्रद्योत अगर दोस्त नहीं है तो दुश्मनी भी नहीं निभाते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा कि बिंबिसर जो है बड़े ही कैलकुलेटिव रूलर हैं जिन्होंने अपने एम्पायर की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाया और अंग और काशी को अपने एम्पायर में ऐड कर लिया। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि बिंबिसर को सक्सीड करते हैं इनके बेटे जिनका नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु की अगर बात करी जाए तो अजातशत्रु जो हैं ही इज द सन ऑफ द लिच्छवी वाइफ ऑफ बिंबिसर। अजातशत्रु जो हैं ये पावर में कैसे आते हैं? ये पावर में आते हैं बाय मर्डरिंग हिज ओन फादर दैट इज बिंबिसर। सो बेसिकली बिंबिसर की रेन काफी बड़ी थी और अजातशत्रु को लग रहा था पता नहीं कभी मरेंगे भी कि नहीं मरेंगे, इसलिए, और ये गद्दी पाना चाहते थे, इसलिए ही किल्स हिज फादर एंड ही कम्स टू द थ्रोन। नाउ व्हेन ही डज दैट ही ऑटोमेटिकली मेक्स अ लॉट ऑफ एनिमीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट द कोशालन प्रिंसेस इनके जो मायके वाले हैं, ठीक है, इनके जो मायके वाले हैं, कोशाल के जो रूलर हैं, ये इमीडिएटली अजातशत्रु के एनिमी बन जाते हैं। यहां पे कोशाल के अंदर जो बैठे हैं उस रूलर का नाम है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत इज द ब्रदर ऑफ द कोशालन प्रिंसेस हु इज अगेन अ वाइफ ऑफ बिंबिसर। तो ये अजातशत्रु को इमीडिएटली बोलते हैं कि भाई आपने अपने फादर को मार के एक तो बहुत ही गलत किया, दूसरी बात ये है काशी जो है वो हमने दहेज में आपके फादर को दी थी, आपको नहीं दी है, तो हमें काशी वापस चाहिए। इसकी वजह से हम देखते हैं प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच में बैटल होता है, बहुत लंबा बैटल चलता है, एंड अजातशत्रु रिफ्यूजेस टू गिव हिज राइट्स ओवर काशी। Consequently, students, you will see after a long battle, Prasenjit is kind of defeated by Ajatashatru, and as a result, Ajatashatru is successful in retaining Kashi. Apart from that, students, it will be important to note that not only Ajatashatru is successful in retaining Kashi, he also makes an attack on Vaishali. वैशाली की अगर बात करी जाए स्टूडेंट्स तो वैशाली इज द कैपिटल फ्रॉम वेयर हिज मदर द लिच्छवी प्रिंसेस इज कमिंग।
जहां से इनकी मदर आ रही हैं, तो ये टेक्निकली अपने ननिहाल के ऊपर अटैक कर देते हैं। वैशाली पर अटैक करने का कारण ये क्या देते हैं? आप सोचें, एक तरफ इनकी मम्मी रो रही है कि भाई तू क्या कर रहा है, तू मेरे ही घर पे अटैक क्यों कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अजात शत्रु जो है वो ये कारण देते हैं कि जब प्रसेनजीत मुझ पे अटैक कर रहा था तो वैशाली ने इनकी मदद करी थी, और इसलिए अब मैं वैशाली पर अटैक करूंगा। वैशाली पर ही अटैक करते हैं, अपने खुद के नाना जी के ऊपर ही अटैक करते हैं, और एक लॉन्ग बैटल के बाद वैशाली को कैप्चर करने में भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर अजात शत्रु की बात करी जाए तो काशी रिटेन कर लेते हैं, और उसके अलावा एक नया पार्ट अपने एम्पायर में ऐड करते हैं, विच इज गोइंग टू बी वैशाली। नेक्स्ट जो हमारे पास सक्सेसर आते हैं स्टूडेंट्स अजात शत्रु के बाद, उनका नाम है उदयन। उदयन की रेन का हमारे पास एक ही बहुत सक्सेसफुल फैक्ट है, और वो ये है कि पाटलिपुत्र एज अ सेकंड कैपिटल जो है, पाटलिपुत्र का जो फोर्ट है उसका कंस्ट्रक्शन उदयन के अंदर होगा, और इसके बाद ये मगध की सेकंड कैपिटल बन जाएगी। तो आपको की पॉइंट्स जो याद रखने हैं वो ये रखने हैं कि बिंबिसर ने कौन सी टेरिटरीज ऐड करी, अजात शत्रु ने कौन सी टेरिटरीज ऐड करी, और उदयन ने पाटलिपुत्र का फोर्ट बनवाया। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हमारी हरियंक डायनेस्टी खत्म होती है, और नेक्स्ट डायनेस्टी शुरू होती है इन मगध, विच इज नोन एज द शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के अंदर हमारे पास जो फाउंडर हैं उनका नाम ही शिशुनाग है, और फाउंडर के नाम पे ही डायनेस्टी का नाम पड़ गया है। शिशुनाग की अगर बात करी जाए स्टूडेंट्स, तो इनका जो सबसे मेजर अचीवमेंट था वो ये था दैट ही फाइनली डिफीटेड अवंती एंड मेड इट द पार्ट ऑफ मगध। हम देख रहे हैं, मैंने आपको बिंबिसर की रेन में ही बता दिया था दैट अवंती इफ नॉट मोर पावरफुल was not at all less powerful in comparison to Magad. And here the greatest contribution is that Shishunag was successful in defeating Avanti, and now even Avanti is a part of Magad. तो मगध में अभी तक क्या क्या ऐड हो गया लिस्ट कर लेते हैं फटाफट से। हमारे पास में मगध में आ चुका है अंग, उसके अलावा हमारे पास है काशी, काशी के अलावा अजात शत्रु ने ऐड करा वैशाली को, और वैशाली के अलावा हमारे पास आ चुका है अवंती, जिसको ऐड किया है शिशुनाग ने। शिशुनाग के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास में जो नेक्स्ट सक्सेसर हैं वो है उनके बेटे काल अशोक। काल अशोक की रेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि इनकी रेन में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। बुद्धिस्ट काउंसिल स्टूडेंट्स बुद्धा की डेथ के बाद होते हैं उनकी रिलीजियस टीचिंग्स को कंपाइल करने के लिए। ओवरऑल एंशियंट इंडिया में 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं जिनको रूलर्स ही पेट्रनाइज किया करते थे। तो इसमें से जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है उसको पेट्रनाइज कर रहे हैं काल अशोक, एंड दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट फैक्ट एसोसिएटेड विथ हिम। With this students, let's proceed further towards the last dynasty of Magad, and these are the Nandas or the Nand. इसमें स्टूडेंट नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो है महापद्मनंद, और इन्हीं को इस डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर माना जाता है। महापद्मनंद का जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि इन्होंने मगध में कलिंग ऐड कर दिया। When we talk about Kaling students, it corresponds to the present day state of Odisha. So here students, again one more territory is added to the Magad Empire, and that is going to be Kaling. Now when we talk about the Nanda dynasty, apart from Mahapadmanand, another important ruler is going to be the last ruler of Nanda dynasty, and his name is Dhananand. When we talk about Dhananand students, his particular reign turned out to be very oppressive. धननंद के लिए माना जाता है कि एक तो ये बहुत ही ज्यादा ग्रीडी थे, ही वॉज एक्सट्रीमली ग्रीडी, एंड इनकी जो पूरी रेन थी उसमें हमारे को सीवियर करप्शन देखने को मिलता है धननंद और उनके ऑफिसर्स के थ्रू। बिकॉज इनका रूल जो है वो बहुत ही ऑप्रेसिव था, जिसमें बहुत हेवी टैक्सेस लगाए जाते थे कॉमन मैन के ऊपर। दैट इज वाई वी सी दैट अ लॉट ऑफ रिबेलियंस आर हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर पीरियड। यहाँ पे क्योंकि धननंद जो है उनसे कॉमन पीपल खुश नहीं है, बहुत ही अजीब से लीडर थे ये ऑल टुगेदर, इस वजह से हम देखते हैं कि इस टाइम पे एक आदमी इस सिचुएशन का एडवांटेज लेता है जिनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो चंद्रगुप्त मौर्य पब्लिक रिजेंटमेंट का फायदा लेंगे और लास्ट रूलर यानी कि धननंद को मार देंगे, और उसके बाद अपना खुद का एम्पायर स्टार्ट करेंगे, विच इज नोन एज द मौर्यन एम्पायर।
तो यहाँ पे नंद डायनेस्टी खत्म होती है और इसी के साथ साथ इंडिया के एंशियंट इंडिया के बिगेस्ट एम्पायर का उदय होगा, विच इज द मौर्यन एम्पायर. Here, students, some more facts associated with Nandas is that when we talk about Nandas, these were considered as being very rich. बहुत पैसा था नंदास के पास में. एट द सेम टाइम अगर इनकी आर्मी की बात करी जाए तो इट वॉज वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट आर्मी. इट वॉज वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट आर्मी इन द एंशियंट वर्ल्ड. एंशियंट वर्ल्ड के अंदर, इंडिया की बात नहीं कर रही हूं मैं, एंशियंट वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट आर्मी मानी जाती थी नंदास की. मोर ओवर स्टूडेंट्स, ये बहुत रिच किस लिए थे? बिकॉज दीज वर होर्डर्स ऑफ वेल्थ. बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके पॉट में भर के रखा करते थे नंदास रूलर्स. और ये बात हमें कैसे पता चलती है? ये बात हमें इसलिए पता चलती है बिकॉज वी हैव अ तमिल पोएट हुज नेम इज मामूलनार. His name is Mamulanar, and he, in his literature, talks about Nandas and calls them hoarders of wealth. Apart from that, another important point which is associated with the reign of Dhananand is that his particular reign will also see the Alexander invasion. धनानंद के पीरियड में ही हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से आके इंडिया पर अटैक करते हैं. इसको ज्यादा ठीक से हम ईरानियन और मैकेडोनियन इन्वेशंस में पढ़ेंगे. अभी के लिए आप बस इतना याद रखें दैट अलेक्जेंडर इज कंटेम्पररी टू विच नंदा रूलर? द आंसर विल बी धननंद. So these were, students, some major facts which are associated with the Nanda dynasty, and with this we see that the last dynasty of Magad is over. After that we will see that Chandragupta will take over, and with that a new empire, the biggest empire of ancient India, is going to come into power, and that is going to be the Mauryan Empire. So with this, students, we are done with the discussion of the Mahajanpad period. We have understood about the emergence of society, polity and economy in this particular period, and we have discussed at length about the most important Mahajanpad, which is Magad. So students, here I am ending the lecture. If you like studying with me, don't forget to like the video. Also students, don't forget to press the bell icon and subscribe to our channel so that you can be notified whenever a new video is coming up. Thank you so much for joining me today.